welcome to today's press conference. Today we are gathered together for the launch of our Maharashtra specific sports league, which is a very big and a unique one. This is called Gali Mohalla Cricket League. This Gali Mohalla Cricket League, as you rightly understood, this is for the common and unprivileged and every child who's not been taken into consideration while the bigger leagues are happening. So this is for the youth and children, everyone. So this is gonna be on the Gali Mohalla level. It's gonna be the grassroots level we're gonna go have. Now I'll tell you about the structure. Now this league is not only a sports league. This is gonna be this is a movement we've started. So our children who are never been participated or not looked into the consideration for the bigger leagues, they will join us, and we will have approximately 500 teams from Maharashtra, that is Mumbai and nearby at the first phase. So सबसे पहले हमारा जो मैच रहेगा, I'll tell you about. और सबसे जो बड़ी बात है, there are 3-4 things which we have looked after for this conference and for the league. The number one is, this is going to help the youth to drive their focus onto sports instead of any of the drugs. So this is going to be moving away from addiction. This can be alcohol, it could be drugs, it could be any kind of addiction. They're going to be focused on the sports league. Second, this is going to be a very big movement for health, for making a national health movement. So all the youth is going to be fit and fine. So that's going to be a strong point for our national health. Second, third is going to be the mental well-being for the youth. And the last is going to be a talent hunt. That means they can prove their mettle in the leagues and they can be the next stars of India, which can be Dhoni, it can be next Kapil Dev or Sunil Gavaskar, anything. So this is going to be a platform, a national platform for them to come and prove their mettle. Now I'll just tell you about how we've designed the league. This is a league which is called, this is turf league. So we will have 100, we've divided the 5 zones into, we will have 100 teams from every zone. So we have 4 zones in Maharashtra, which is Mumbai, Navi Mumbai, then we have Thane and Raigad. So these are the 4 zones, and we're expecting 500 total teams. Even more can happen. And every team will play around 10 matches. So we will have 5,000 matches going on for next couple of months till we go to the final stage. So this is how the thing is, and this is going to be 10 overs each match. And this is going to be a tennis ball match, and there will be no uniform. This is going to be played by the common people. So we will have the way they have been playing in Gali Mohalla. This is going to be the league which is going to cater to that. Now we come to the prize. So we also have a prize money of 11 lakh rupees for the first team, and then the second runner-up is going to be 5 lakh. Not only this prize, we will have proper training programs for the next year. So for these 2 teams, and not even these 2 teams, but we will have all the players which are going to perform during the matches. If they perform their worth, we will have their training programs for next 1 year in these academy. That is Pride Academy and the academy which we have already tied up with for Maharashtra specific. So this is going to be the game plan. And now we will go ahead with. Okay. Now we have Ramanjeet Singh, who is the CEO of the league. He will explain a little more about it. Thank you. Very good news coming up. We have already tied up with Mumbai Police as a partner for the drug-free Mumbai. So we already partnered, and our inaugural match is going to be very soon in Khar Gymkhana Club under the police partnership. So that is a big news for us. Near about 17-20 June, this month. Yeah. So this month it's going to be. Before 20th. Yeah. I'll request Ramanjeet. Namaskar and good afternoon. Thank you for being here today.
I stand before you not just as a CEO of a league, but as a custodian of a movement. The Gully Mohalla League is India's first largest scale structured tennis ball cricket league rooted in our streets, our gullies and our mohallas. Execution with excellence. Having scaled global business, I know operational decide outcomes. The bigger picture, India's demographic dividend. India is the youngest country in the world. But where is our global medal tally? The next Kapil, Kohli or Tendulkar is not in our stadium. They are in Bahrain playing with broken stumps and borrowed balls. We will find them, we will back them, we will elevate them. Gratitude and commitment to my partner, colleagues, Baba Inderpreet Singh, our spiritual anchor, who bring purpose to this mission, Harmeet Singh, our architect of systems and training, Aman Bandhvi ji, who envision a world-class impact-driven Gully Mohalla League at scale, and to every coach, volunteer and scout on the ground. This is our league, this is India's league. It's India rising to its roots. Let's not just watch, let's invest, engage, make history together. Thank you, Jai Hind, Jai Maharashtra. सबसे पहले मेरे साथ बैठे बाबा इंद्रप्रीत जी, रमन गांधी सीईओ, हरमीत जी डायरेक्टर, मेरे दाईं ओर इम्तियाज़ जी, रिजवान जी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारा जो साथ दिया है इसको खड़ा करने के लिए, वो इट्स कमेंडेबल। व्हाट वी कुड हैव अचीव्ड, वी हैड अ टाइमलाइन ऑफ 6 to 9 months. विद देयर हेल्प वी हैव बीन एबल टू डू इट सुपर फास्ट। मैं कैपिटल, ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल पी इन्वेस्टर्स से गली मोहल्ला क्रिकेट लीग में लगाई है। एवरी टाइम आई एम आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। सब मुझसे ये पूछते हैं कि वाई आर इन्वेस्टर्स पुटिंग देयर मनी इन अ क्रिकेट लीग, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ जो हमारी टीम ने, जिसके ऊपर बहुत काम किया है। दैट इज़ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्पैक्ट, सोशल ROI। एंड हाउ विल वी मेजर सोशल ROI? गली मोहल्ला क्रिकेट लीग, जैसे हमारा टैगलाइन है, फ्रॉम गलीज टू ग्लोरी। जैसे हरमीत जी ने, रमन जी ने, मेरे से पहले वक्ता थे जिन्होंने आपको बताया कि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं सुविधाओं से, उन्हें जल्दी से उनका हुनर को पहचाना नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं मिलता टू जॉइन अ बेटर लीग, टू राइज इन लाइफ। दोज गाइज नीड अ रिलीज। सेकेंड थिंग, जहाँ पर बाबा जी ने, इंद्रप्रीत सिंह जी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, इस फंड ने बाबा जी के साथ पिछले कुछ सालों से इनके प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया है, काम किया है। उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको समरी दे दूँ। पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और जिन फैमिलीज़ में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। दे आर अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट, दे आर फिक्स्ड इन अ टाइम वॉप। उस पर्टिकुलर एरिया में उन इफेक्टेड फैमिलीज़ की महिलाओं को स्काउट करके बाबा जी के हेल्प से फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल पहले। हर एक महिला को सिलाई मशीन, फुलकारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पंजाब का, जिसमें शॉल, स्टोल्स और स्वेटर्स बुने जाते हैं, और उनसे हमने वो बनवाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको कोच प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद उसका बाई बैक किया। वी परचेज बैक दी स्टफ दैट दे मेड एंड इट वॉज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ टेक इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स हमने इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगाई, एक वेरी सिंपल फॉर्मेट कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक QR कोड है। जैसे कि आप सब आजकल जानते हैं, इट्स वेरी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। सो एनी पर्सन इन कैनेडा जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, QR कोड स्कैन करता है, ही इज़ एबल टू फाइंड exactly which women from which district, from which village worked on that particular stall, and we have once the women of the head of the become stronger, the family also rises. If the family is strong, the society gets strong. This same model has been now collaborated with the Satkarmik Mission and Ramanji's Gully Mohalla Cricket League, and the same model is now brought into the Cricket League. So we are now making it a social impact project. Youth which does not have any direction, easily अपने रोल मॉडल आज तक वो सेलिब्रिटीज़ को मानते हैं, ड्रग्स के प्रति ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स ऑफ एनी फॉर्म, एज हरमीत जी सेड, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी एनीथिंग।
So they are directionless and they don't have any vision in life. What should they do in life? How can they make their careers and lives and societies and their families better? So this cricket league is going to work on many fronts. One of them is social impact. Those youth will now be channelized, motivated कि उस गंदे नाले से निकल के आप स्पोर्ट्स की तरफ चलें. जब स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, कोचिंग मिलेगी, मेंटल रेजिलियंस, मेंटल बैंडविड्थ, मेंटली दे विल बी स्ट्रॉन्ग. They will not think only negative, they will start thinking positively. Because they have to play a sport, they will take care of their health and fitness. So once you have a mentally driven and fit youth body and you give them the proper training and they get a platform, सबसे बड़ी बात हम एक platform दे रहे हैं. जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हम we are not going to be dependent on props. So the cricket bats and all, as the Gully Mohalla League will give, they are able to play in the same format as they play in the streets. They will get an impetus, a motivation कि हम एक स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें. क्रिकेट से क्रिकेट के पहले ज़्यादा रुझान होगा. और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इसीलिए आई है कि इन्वेस्टर्स को अब सोशल इम्पैक्ट और ROI इस तरह से समझाई गई थी. अब आप पूछेंगे इसको हम मेजर कैसे करेंगे. सब हमें ये पूछते हैं कि आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करी है, इफ़ इन्वेस्टर्स हैव कम रेडी कि they want to see impact, how will you measure impact? We will work in close association with our Maharashtra team, with government agencies, with NGOs. So we will know कि एक particular area में कितने लोग ड्रग से एडिक्टेड हैं. अगर उसमें से 1%, 2%, 3%, I am able to show on record that they have joined cricket and they made a life easier. It's one of the markers. Equity, diversity, we are the first ones, I believe, in Maharashtra Cricket League to also have a women's team. So diversity, inclusion, the same entire format, it's a structured format. Everyone will be given training, resources to actually rise in life. So if you have something to look forward to for a better tomorrow, you're much more motivated. कि अगर मुझे बाइट्स देने का मौका मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले, मेरे बारे में लोग सुने, मुझे बोलने का इजाज़त, मुझे हर जगह बुलाया जाए. This is how you shape young minds. The next generation is actually, this is what we feel, directionless. हम AI में काम करते हैं तो उसमें एक डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है कि AI, AGI इतना एडवांस्ड हो रहा है आजकल. चैट GPT को हमने 2 साल पहले देखा था. अब अगर इतनी एडवांस होगी तो जॉब्स चली जाएंगी. तो अगर जॉब चली जाएंगी तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो इट्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर. हम ये समझते हैं कि हर चीज़ AI से इफेक्टेड होगी. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इससे इफेक्ट नहीं होगी, उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ फेयर सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी. जैसे कि हरमीत जी ने आपसे बताया, महाराष्ट्र पुलिस ने इस प्रोजेक्ट में और क्रेडेंशियल्स देखने के बाद, और आई थिंक 2-3 बार मीटिंग्स बाबा जी से रूबरू हुए, वो इनसे वो समझा, इनका पूरा पास्ट रिकॉर्ड उन्होंने क्रॉस चेक किया. दे वर एबल टू गेट कन्विंस्ड एंड दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अस. इससे बड़ा हमारा लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि जैसे मेरे टीम यहाँ पे रिजवान भाई, इम्तियाज़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, शशांक जी, सूरज जी, एंड महाराष्ट्र की जो सारी टीम मेरे साथ आई है, कुछ कैप्टन्स भी यहाँ हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ा है. और जैसे कि उन्होंने कहा, खार जिमखाना में इसी 20 से पहले एक इनॉग्रल मैच भी होगा. ये हमारे लिए एक बहुत, हमारे लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए एक बहुत सराहनीय चीज़ है. इट्स वेरी कमेंडेबल. सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ आई विल रिक्वेस्ट काइंडली टू बाबा जी, बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, सत्कर्मिक मिशन से जी. मैं तो बोलता हूँ मोहल्ला क्रिकेट लीग के लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट नहीं हुए. हम कलेक्ट हुए हैं नशा मुक्ति के लिए, ड्रग्स को हटाने के लिए. जो न्यू जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा, जिससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, और हमारे बॉम्बे में बहुत सारी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं. अब उसने ये अभियान चालू किया है, ये कदम उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो मोहल्ला क्रिकेट लीग. जब हमारी अभी 4 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारी से हमारी मीटिंग हुई खार में, तो जितने भी खार जिमखाना क्लब्स में जो स्टार किड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहली लॉन्चिंग जो है वो 17, 18 और 20 तारीख से हो रही है, जिसकी ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का GR है, 17 से लेके और 25 तक नशा मुक्ति केंद्र का हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस इसको एग्जीक्यूट कर रही है. राइट. तो मुंबई पुलिस जो एग्जीक्यूट कर रही है
वो आपके मोहल्ला क्रिकेट लीग के साथ कोलैबोरेट होके पहली लॉन्चिंग हो रही है। पब्लिक होती तो मैं उसको ऑडियंस के लिए, क्लब के लिए बोलता, लेकिन ठीक है, तो ये पहला लॉन्चिंग। थैंक यू वेरी मच। एजेंडा जो है हमारा, मुंबई पुलिस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीआर है कि महाराष्ट्र से नशा हटाया जाए बच्चों को, तो उनकी जो पहली लॉन्चिंग है खाद जिमखाना क्लब में, वो आपको डेट डिसाइड दी जाएगी। उस पर सबको दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ये। तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का, वो है नशा मुक्ति केंद्र। और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा अपने आप छूटेगा। सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स का है। तो मैं इनके लिए गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज। हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो, या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएँ तो पिंड बोलते हैं जिसको, विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारावी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया। अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1000 रुपये से 5000, 10,000 रुपये की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीज़न है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, कुछ करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का ज़रिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो, तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10,000 रुपये के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा। ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए, क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी ज़िंदगी दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े, इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं आईपीएल को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा आईपीएल के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेंस टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, किसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए। त्यांनी आमच्या ब्रह्मपूजा सोशल फाउंडेशन तर मी डायरेक्टर त्याला सोबत घेतलं आहे, त्याच्याबद्दल मी कोर कमिटीचा आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद करतो। आणि झोन्स आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 4 झोन्स आता सिलेक्ट झालेले आहेत, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि रायगड, कोकण। तर ह्या झोनमध्ये परत सब झोन्स तयार होतील। जशा टीम वाढत जातील ज्या एरियामध्ये, त्या एरियामध्ये आपण त्या मॅचेस तिथे कंडक्ट करू। एका झोनला 100 टीम्स असतील, असे 5 झोन किंवा 4 झोन्समध्ये आपण ते कन्वर्ट करणार आहोत। पण त्याच्या व्यतिरिक्त वाढल्या मॅचेस तर अजूनही झोन्स वाढतील आणि ते झोन वाढवायची पण क्षमता त्यांनी सांगितलेली आहे की आम्ही करणार आहोत। फक्त मुलं आली पाहिजेत आणि आपलं कन्सेप्ट एकच आहे की ड्रग्स पासून किंवा नशामुक्त हे झालंच पाहिजे मुलं। आणि आपण मुलांना ट्रेनिंगमध्ये पण तेच देणार आहोत की सगळ्यात पहिले डिसिप्लिन आणि खेळाची आवड तर सगळ्यांनाच असते, पण जो प्लॅटफॉर्म भेटतोय तो गल्ली मोहल्ला क्रिकेट टीम मधूनच भेटतोय आणि तो कोणीच देऊ शकत नाही। खूप लोक आहेत मुंबईमध्ये, खूप मोठमोठी लोक बसली आहेत, पण कोणी गल्ली मोहल्ल्याच्या मुलांसाठी काही करत नाही। तर गल्ली मोहल्ला टीम मध्ये हा सगळा कोर डायसिटी आहे। तर त्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद करतो, मीडियाचे सुद्धा धन्यवाद।